हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें सभी फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किए थे। आज हम उसी को एक बार रिवाइज करेंगे। ये फॉर्मूलेज हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज if x is a random variable that follows binomial distribution having two parameters np, so the first and the most important formula, that is probability of x equals to x, it is ncx. P, probability of getting success, its power is x, and q to the power n minus x, where x can take value 0 से 9 तक, 0 1 2 3 up to n. And here p plus q equals to 1. Second formula is for expected value, that is e of x, also denoted by mu. It is n multiplied by p. Variance, that is sigma square, is npq, and standard deviation, it is root of npq. One more problem that you can face while solving this exercise, that is how to find out the value of ncx. सो यू सी स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने अलग से तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया, एक वीडियो है कॉम्बिनेशन में, रूल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, उसका लिंक मैं तुम्हें दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी रेफर कर सकते हो। बट जो शॉर्ट में जो हमें मेन यूज करना है, दैट इज एनसीएक्स इक्वल्स टू एनसी एन माइनस एक्स। दैट इज अगर 10c7 दिया है तो 10c7 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 7 कितना, 3। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 10c3, तो 3 मतलब ऊपर 3 नंबर लिख देंगे रिवर्स, 10 9 8, नीचे 3 2 1, एंड देन सॉल्व इट। 3 3s are 2 4s are, आंसर इज 120। अब अगर आता है 8c6, सो 8c6 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 6 कितना, 2। अब नंबर कितने हैं, 2, तो 8 7 2 1, so this is 28. Now 7c5, we can also write 7c2, 2 है तो 7 6 2 1, so this is 21. Okay, so students start करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन, a die is thrown 6 times, means what, n is 6. If getting an odd number is a success. Now what is success? Getting an odd number, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो odd number आना मतलब सक्सेस है। So odd number कितने होते हैं, 1 3 5, total 6, 3 odd numbers. So what is the probability of getting odd number, 3 upon 6, that is 1 by 2. Now find the probability of part 1 getting 5 success, at least 5 successes, at most 5 successes. Okay, so it is a Bernoulli's trial. Now why it is Bernoulli's trial? Because every time we perform the trial, the probability will remain same, it will not change. Now x denotes the number of times getting an odd number in 6th row of a die. What is x? X always denote the number of successes. And what is success here? Getting an odd number. P is the probability of getting odd number. Students ध्यान में रखना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, फर्स्ट तुम्हें एक्सप्रेस करना है x को। x हमेशा क्या रहेगा, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग सक्सेस। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, कितने थ्रो में, 6th थ्रो ऑफ अ डाई। नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे लिखना है p। व्हाट इज स्मॉल p? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। यहाँ पर है गेटिंग एन ऑड नंबर इन अ थ्रो ऑफ अ डाई। नाउ ये लिखना है x, random variable follows binomial distribution and it has 2 parameters n and p. What is n here? कितनी बार डाई को थ्रो किया, कितनी बार ट्रायल को किया गया, 6 times. What is probability of getting success? Success means odd number, so odd number होते हैं 1 3 5.
टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 3/6 मीन्स 1/2. नाउ इफ P इज 1/2, Q कितना होगा 1 माइनस P, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ. सो स्टेप्स फिक्स रहेंगे, पहले कैपिटल X लिखना है, फिर स्मॉल p लिखना है, फिर उनकी वैल्यूज लिखनी है N, P एंड Q की. देन यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यहां तक लिखते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स. योर फॉर्मूला शुड बी करेक्ट. NCX P to the power X Q to the power N minus X, where X can take value 0 से N तक. Now N के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 6. ओके, P के प्लेस पर 1/2, Q के प्लेस पर भी 1/2. Now what is the first part students? We want 5 successes out of 6. We want 5 successes means यहाँ पर X की वैल्यू क्या हो जाएगी 5. So how to write P X equals to 5. 6C5 1/2 raised to the power 5. 1/2 6 minus 5 that is 1. Now 6C5 मैंने अभी बताया था how to find out the value of NCR. 6C5 को we can write 6C1 also, और ये हो जाएगा 1/2 raised to the power 6. So 6C1 means 6. 1/6, 1/2 raised to the power 6 means 64. So answer is 3/32. This is the answer of first part, that is we want 5 success. Now the second part is student at least 5 success. At least 5 success का मतलब हुआ सक्सेस 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए. अब 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए मतलब या तो 5 होनी चाहिए. अब 5 से ज्यादा क्या हो सकती है, मैक्सिमम 6. तो 5 से ग्रेटर, 5 और ग्रेटर देन 5 मतलब Px इक्वल टू 5 और Px इक्वल्स टू 6. नाउ पुट हियर, अभी 5 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है. 6C5 1/2 raised to the power 5, 1/2 raised to the power 1, and X equal to 6, 6C6 1/2 raised to the power 6. ओके, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6C5 कितना होता है 6, ये हो जाएगा 1/2 raised to the power 6. एंड रिमेंबर दिस NC0 NCN इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. तो 6C6 इट इज 1/2 raised to the power कितना 6. So 6/64, 1/64, answer is 7/64. This is the probability of getting at least 5 success. Now the third part is probability of getting at most 5 success. Success 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब सक्सेस 5 या फिर 5 से कम होनी चाहिए, मतलब सक्सेस या तो 0 हो, 1 2 3 4 5. इतने सारे केसेस तो हम नहीं निकालेंगे. कौन सा केस यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 4 5. तो कौन सा केस नहीं आया यहाँ पर 6. ओके, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल x या तो वैल्यू 0 ले सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू 6. तो हम क्या करेंगे, सबका सम हमें मालूम है अप टू 6 कितना होता है 1. सो 1 में से जो नहीं आया उसको माइनस कर दो. ओके, क्यों करा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं. पहला क्वेश्चन है क्योंकि 0 1 2 3 4 5 एंड 6 इन सबका टोटल 1 होता है. तो हमें ये सब निकालनी है. तो इतना निकालना तो बहुत मुश्किल है. तो ये सब क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 1 माइनस Px इक्वल्स टू 6. सो क्या लिखेंगे 6C6 1/2 raised to the power 0, 1/2 raised to the power 6. सो ये हो जाएगा 1 minus 1 64. 1 minus 1/64 that is 63/6.
64। स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इन विच अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 times। व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, सैंपल स्पेस हम 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 6 6, टोटल आउटकम्स 36। डबलेट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। So getting doublet, that is 6 upon 36 means 1/6. So a pair of dice is thrown 4 times. So here n is 4. Getting a doublet is considered a success. Success means getting a doublet, जिसकी मैंने probability अभी explain की. Find the probability of getting 2 successes. तो start करते हैं. Here repeated throw of pair of dice is Bernoulli's trial. Now you can see what is x here. X starting similar करनी है. What is x? X is number of times getting doublet. X denote करता है number of successes. और यहाँ पर success क्या है? Getting a doublet when a pair of dice is thrown 4 times. Now what is P? P is probability of getting doublet, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So x follows here binomial distribution with 2 parameters n and p, where n here is 4, p here is 1 upon 6. So q we can find out 1 minus p, 1 minus 1/6, that is 5 upon 6. Now you have to write first, again एक बार और बताती हूँ, second is this, third you have to write all the values, fourth step में लिखना है तुम्हें main formula NCX, P to the power X, Q to the power N minus X, where X can take these values. Now N के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे, P के प्लेस पर 1/6, Q के प्लेस पर 5/6. Now what we have to find out, the main thing that we have to find out is 2 successes. So small x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 4C2 1/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर, बिकॉज 4 minus 2 that is 2. 4C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 into 3, ऊपर 2 नीचे 2 नंबर्स, 2 into 1. सो ये हो गया 2 2s, देन ये कैंसिल करके फाइनल आंसर विल बी 25 upon 260. स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड पार्ट पे. देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफेक्टिव आइटम, इधर भी डिफेक्टिव आइटम, मतलब यहाँ पर सक्सेस क्या होगी? गेटिंग डिफेक्टिव आइटम. सो जैसा मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? कैपिटल X दैट डिनोट नंबर ऑफ सक्सेसेस. सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स आउट ऑफ 10 items out of sample of 10 items. Okay. P क्या होता है? probability of getting success. तो probability of getting defective item. Now X follows binomial distribution NP. What is N here? 10. And what is P here? Out of 100, 5 are defective. So 5 upon 100 means 1/20. So we can find out Q, 1 minus P, 1 minus 1/20, that is 19 upon 20. Then at fourth step you have to write down the formula. Fifth step में you will put here the value of N, P and Q. वो put कर दी. अब हम आते हैं बेसिक अपना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? दैट sample of 10 items will not include more than 1 defective. तो x क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1. इट शुड नॉट बी मोर देन. 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 या 1 से कम. तो 1 या 1 से कम में तो क्या होगा? 1 या 1 से कम में क्या होगा? या तो 0 या फिर 1. अब इसे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूले में एक बार 0 पुट करेंगे तो 10C0 1/20 to the power 0, 19/20 to the power 10. और एक बार 1 पुट करेंगे तो 10C1 1/20 की पावर 1 और 19/20 की पावर 9. अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सो सॉल्व कैसे करेंगे? P x लेस देन इक्वल टू 1.
10C0 ये हो गया 1, 19/20 रेज टू दी पावर 10। यहाँ पर 10C1 का मतलब 10, 10/20 मीन्स 1/2, 19/20 रेज टू दी पावर 9। नाउ टेक कॉमन, कॉमन में क्या आएगा 19/20 रेज टू दी पावर 9, कॉमन आ जाएगा। सो 19/20 एक रह जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर रह जाएगा 1/2। सो ये हो जाएगा 19/20 रेज टू दी पावर 9 and this is 29/20. So students, final answer is probability of getting not more than one bulb is 29/20, 19/20 raised to the power 9. Students, start करते हैं fourth question. 5 cards are drawn successively. It means here n is 5 with replacement. With replacement show करता है that it is Bernoulli trial. From a well shuffled deck of 52 cards, find the probability that all 5 cards are spades. Only 3 cards are spade. None is a spade. It means what, student? It means that here spade means, getting spade means success. So what we will write? How to start? Let capital X, that is random variable, be the number of spades when 5 cards are drawn. Out of 5 cards, capital X denotes number of spades. Now what is small p? Number के place पर you have to write probability. So probability of getting spade. Third step में you have to write down all the values of n, p and q. So capital X follows binomial distribution where there are two parameters n, p. Here n is 5. P means getting success, getting spade. So out of 15 cards, there are 13 spades. So probability of getting spade is 13/52, that is 1/4. So not getting spade मतलब failure के chances क्या हो जाएंगे 1 minus p. 1 minus 1/4, that is 3/4. Now formula, this is must, you have to write down the formula. Px equals to x, that is ncx, p to the power x, q to the power n minus x, where x can take value from 0 to n. Now put here the value of n, p and q. n के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, p is 1/4, q is 3/4. अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट्स पर. सो फर्स्ट इज ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड. 5 कार्ड निकाले और पांचों कार्ड हमें स्पेड चाहिए, मतलब वी वांट 5 सक्सेसेस. सो x के प्लेस पर कितना आ जाएगा 5. सो 1/4 रेज टू दी पावर 5 और 3/4 रेज टू दी पावर 0. नाउ मैंने बताया था 5nc0 जनरल याद रखो और ncn दोनों की वैल्यू 1 होती है. तो 5c5 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड 4 टू दी पावर 5 कितना होता है 1024. सो स्टूडेंट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 1/1024. अब द सेकेंड पार्ट इज दैट वी वांट ओनली 3 स्पेड्स. ओनली 3 स्पेड्स मीन्स इस फॉर्मूले में अब जहां हमने x के प्लेस पर 5 रखा था वहां पर x के प्लेस पर 3 आएगा. तो ये हो जाएगा 5c3 1/4 रेज टू दी पावर x. तो अब हमें 3 सक्सेस चाहिए, मतलब 3. अगर सक्सेस 3 होंगी तो 5 में से फेलियर कितने होंगे 2. सो 3/4 रेज टू दी पावर 2. अब 5c3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 5c3 को वी कैन ऑल्सो राइट 5c2. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 into 4, 2 into 1. 4 का क्यूब 64, ये 9 और 4 स्क्वायर इज 16. 2 2s are 4. तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? कुछ कैंसिल हो रहा है? यस. 2 8s are. सो ये हो गया 5 into 9 दैट इज 45 and 64 multiply by 8 that is 512. Now third part.
नन इज अ स्पेड, मतलब एक भी स्पेड नहीं होना चाहिए, मीन्स वी वॉन्ट जीरो सक्सेस. जीरो सक्सेस मीन्स एक्स के प्लेस पर हम जीरो पुट कर देंगे. सो ये हो जाएगा 1/4 रेज टू दी पावर 0, 3/4 रेज टू दी पावर 5, क्योंकि n माइनस एक्स 5 माइनस 0 दैट इज 5. नाउ 5c0 nc0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1. 3 टू दी पावर 5, सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 243. एंड 4 टू दी पावर 5, ये कितना हो जाएगा, 1024. सो फाइनल आंसर इज 243 अपॉन 1024. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो स्पेड. स्टूडेंट्स आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में. द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज यूज इज 0.05. ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि बल्ब फ्यूज होगा, तो यहां पर सक्सेस क्या हो जाएगा कि बल्ब फ्यूज हो जाए. सो हम क्या लेंगे, एक्स नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज. आगे रीड करते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, 5 सच बल्ब्स मीन्स n क्या हो जाएगा, 5. नन, नॉट मोर देन 1, मोर देन 1, at least one will fuse after 150 days of use. means यहां पर फ्यूज अगर बल्ब होता है तो दैट इज सक्सेस. सो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज. सो व्हाट इज स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज. थर्ड स्टेप क्या आएगा, x follows binomial distribution. It has two parameters n p. Here n is 5. Probability bulb fuse होगा that is 0.05 means success की. So failure की क्या होगी, q की वैल्यू क्या होती है, 1 minus p. 1 minus 0.05 that is 0.95. Now main formula आएगा, the formula is px equals to x, that is ncx, p to the power x, q to the power n minus x. Probability of getting x success, तो यहां पर x वैल्यू ले सकते हैं 0 से n तक. अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज नन ऑफ द बल्ब विल गेट फ्यूज. एक भी बल्ब फ्यूज ना हो, मतलब यहां पर n के प्लेस पर 5, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, 0 सक्सेस. सो p की जगह 0.05 टू दी पावर 0, 0.95, 5 माइनस 0 दैट इज 5. नाउ 5c0 की वैल्यू 1, 0.95 रेज टू दी पावर 5. So this is the answer of first part. Second part is not more than 1. Not more than 1, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब 5 में से बल्ब एक खराब हो या एक भी नहीं, लेकिन बल्ब एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए. नॉट लेस देन 1, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1. सो 0 का मतलब ये अभी हमने निकाला 0.95 रेज टू दी पावर 5, फर्स्ट पार्ट में निकाला. और ये क्या हो जाएगा, 5c1 इस फॉर्मूले में रखेंगे, n के प्लेस पर 5, x के प्लेस पे 1, 0.5 टू दी पावर 1, 0.05 टू दी पावर 1, 0.95 टू दी पावर 4. अब इसे सॉल्व करते हैं तो 0.95 रेज टू दी पावर 4, इधर 5 है इधर 4 है, सो कॉमन आ जाएगा. 0.95 प्लस ये 5c1 कितना होगा, 5c1 दैट इज 5, 0.05. ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, 0.95 रेज टू दी पावर 4, 0.95, 0.25. सो 1 पॉइंट, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 1.20 मल्टीप्लाई बाय 0.95 रेज टू दी पावर 4. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट.
अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, एंड द थर्ड पार्ट इज मोर देन वन। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा बल्ब खराब होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, मतलब 2, 3, 4 या फिर 5। तो ऐसे केस में हमें कौन कौन से केस चाहिए? 2, 3, 4, 5। और हमें पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 सबका टोटल कितना होता है? 1। और हमें ये 4 केसेस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। कौन से केसेस? 0 वाला और 1 वाला। ये समझ में आया? टोटल केसेस है 6 का टोटल है 1। हमें निकालने हैं 2 वाला केस, 2 बल्ब फ्यूज हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए या 5 हो जाए। तो इन सब 6 केसेस का टोटल है 1। तो 1 में से हम ये 2 केसेस को माइनस कर देंगे, जो अभी हमने आंसर निकाला 1 माइनस 1.2, 0.95 raised to the power 4. So this is third part. Now the last part is at least 1. At least 1 का मतलब क्या हुआ? 1 और ग्रेटर देन 1। एट लीस्ट 1 का मतलब एक या एक से ज्यादा। मतलब इसमें कौन कौन से केसेस? 1, 2, 3, 4, 5। और हमें पता है 0, 1, 2, 3, 5 का टोटल कितना होता है? 1। तो ये 5 केस अलग अलग निकाल के उनको ऐड करने से, इतना लेंदी प्रोसेस करने से अच्छा है कि हम 1 में से कौन सा केस माइनस कर दे? 0 वाला। 0 वाला केस क्या था? 0.95 रेज टू दी पावर 5। स्टूडेंट्स आते हैं 6 क्वेश्चन में। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls in which the numbers are written from 0 to 9. Now if 4 balls are drawn successively with replacement है, but means that it is Bernoulli's trial. अगर without replacement होता तो it is not Bernoulli's trial. Okay. So from the bag, what is the probability that none is marked with digit 0? So यहाँ पर हम digit 0 की बात कर रहे हैं, तो मैंने बॉल with digit 0 आना मतलब सक्सेस। तो यहाँ पर x को हम क्या डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर सक्सेस क्या लिया है? नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद 0 व्हेन 4 balls are drawn at random successively. n क्या है? probability that the ball is drawn is marked as 0. Now x follows binomial distribution with parameters n and p. Here n is 4 because 4 balls are drawn. p is 1/10 because we want ball marked with 0. तो 0 वाली 1 है और टोटल 10 है, तो 1/10। तो नॉट गेटिंग 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10। फोर्थ स्टेप में हम फॉर्मूला लिखते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम एन, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी। नाउ व्हाट वी वांट, देयर इज ओनली वन पार्ट दैट नन इज, एक भी बॉल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसपे 0 मार्क हो। मतलब चारों बॉल कैसी होनी चाहिए? नॉन 0 वाली। तो यहाँ पर हमें एक भी सक्सेस नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सक्सेस किसे माना है? 0 आना। और हमें बोला है नन इज 0, मार्क 0, मतलब एक भी सक्सेस नहीं चाहिए। तो x के प्लेस पर 0। सो फाइनल आंसर 1 into 1 into 9/10 होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर 4। स्टूडेंट्स आते हैं 7th क्वेश्चन में। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स, देयर आर 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ 5 क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग? सो स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर जस्ट बाय गेसिंग इन केस ऑफ 3 options? So total options are 3. Out of 3, only 1 option is correct. So probability of writing correct answer is 1/3. If there are 5 options, then 1/5. क्योंकि total options कितने हैं? 5. But right होने के chances, right answer is only 1. So probability हो जाएगी 1/5.
अगर 4 ऑप्शंस होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में, सो 1/4 लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, करेक्ट आंसर। तो ये है हमारे लिए सक्सेस। सो x क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली जस्ट बाय गेसिंग। p is the probability that the question is answered correctly. Now x follows binomial distribution, 2 parameters n and p, here n total number of questions 5 है। Now 3 options है, इसलिए probability of getting correct answer is 1/3. So q we can find out 1 minus p, that is 2/3. Now we have to write down the formula. ओके, इन फोर्थ स्टेप में हम फॉर्मूला लिखते हैं एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। अब यहाँ पर एन के प्लेस पर पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक तो फिक्स है, ये स्टेप फिक्स है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। अब हम आते हैं, क्या चाहिए हमें, 4 और मोर करेक्ट आंसर। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो इधर 4 और 5। सो 4 के लिए x के प्लेस पर हम 4 पुट कर देंगे, 5c4 1/3 रेज टू दी पावर 4, 2/3 5 minus 4 that is 1, and the next is 5, 4 और 5, तो 5 के लिए x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5c4, I told you that nc0 nc1 nc(n-1) दोनों की वैल्यूज n होती हैं, तो 5c4 की वैल्यू भी 5 होगी, 5c1 की वैल्यू भी 5 होगी। सो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 1/3 रेज टू दी पावर 4, दैट इज 81 इंटू 2/3। 5c5 की वैल्यू 1/243। ओके, ये वैल्यूज कैसे आई, तो ये है nc0 ncn दोनों की वैल्यूज 1। सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 इंटू 2 10/243 प्लस 1/243, आंसर इज 11/243। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते 8th one। अ पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट इन 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. Find the probability that he will win a prize at least once, exactly once, at least twice. तो यहाँ पर बार बार बात हम कर रहे हैं winning a prize. So x क्या हो जाएगा, number of prizes winning in 50 lotteries. P is probability of winning a price. Now x follows here binomial distribution, and p here n is 50, p here is 1/100, and q is 1 minus p, that is 1 minus 1/100, so 99/100. Now fourth step, you have to write down the formula px equals to small x n c x p to the power x q raised to the power n minus x, where x can take value 0 1 2 3 up to n. Now in place of n put here 50, p के प्लेस पर 1/100 and q के प्लेस पर 99/100. Now student, what is the first part, at least once. First part is find the probability of that he will win a prize at least one. At least one मतलब greater than or equal to 1. So we know that 0 से लेकर up to 50 तक, ओके, इन सभी का टोटल कितना होने वाला है, प्रोबेबिलिटी का 1। अब हमसे बोला है 1 के आगे सब निकालो, 1 2 3 अप टू 50, मतलब सिर्फ 0 का हमें नहीं निकालना। तो हम 50 केसेस तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0 वाला केस। सो ये हो जाएगा 1 माइनस, ओके, क्योंकि 0 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो 1 में से 0 वाला केस माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 50c0
1/100 raised to the power 0, 99/100 raised to the power 50. Now students 50C0 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1. So what is the answer? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 minus 99/100 raised to the power 50. ओके, इधर लिख देती हूँ 1 minus 99/100 whole bracket raised to the power 50. Now second part is exactly ones. exactly 1 में अब x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? p x equal to 1. x equal to 1 मतलब 50C1 1/100 raised to the power 1, 99/100 raised to the power 49. So 50C1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50. NC0 NCN इनकी वैल्यूज 1, NC1 NCN -1 इनकी वैल्यूज n. तो ये हो गया 50 1/100 99/100 raised to the power 49. So ये कैंसिल 1/2. So 0.5 99/100 raised to the power 49. Now next is third part, at least twice. At least twice means 2 or greater than 2. So अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 0 1 2 3 4 up to 50. 2 के आगे सभी चाहिए, 2 3 4 5 6 up to 50. इन सबका टोटल 1 होता है, तो हम इन दोनों को 1 में से माइनस करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? 1 minus x equal to 0, x equals to 1. तो 0 का केस क्या होगा? 0 का केस अभी हमने ये निकाला था. सो ये कितना हो जाएगा? 99/100 raised to the power 50. और अभी हमने यहाँ पर 1 वाला केस निकाला, 0.5 99/100 raised to the power 49. अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर. सो कॉमन क्या आएगा? 99/100 raised to the power 49 कॉमन. इधर क्या रह जाएगा? 99/100 प्लस 0.5. 0.5 को वी कैन राइट 1/2. ओके, सो ये हो जाएगा 1 minus 99/100 49. ये कितना हो जाएगा? 149. और यू कैन राइट 1.49 99/100 raised to the power 49. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन. इन अ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क. Means this is the chances that the floppy disk will work. This is P. अगर हम मानते हैं कि disk will work, this is success. So here P is 95/100. Now a sample of 3 of the disk is selected at random. So N here is 3 and this is P. Find the probability. None, 1, 2, all 3 of sample will work. So how to start? Let the random variable x here number of disk that will work from sample of 3. अब P को क्या लेंगे? Probability that the disk will work. Now x follows here binomial distribution. What is N here? 3. What is P here? 95% means this, and Q is 1 minus P, which is equals to 5/100. Now write down the formula. What is the formula? Formula is NCX P to the power X Q to the power
n minus x, where x can take value 1, 2, 3 up to n. Now students, put here the value 3cx 95 upon 100 to the power x, 5 upon 100 to the power n minus x. Now what we want, let us do first part, none. None of the disk in the sample will work. मतलब हमें सक्सेस एक भी ना मिले, ऑल फेलियर, सो जीरो. सो ये हो जाएगा 3c0 95 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 0, 5 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 3. नाउ nc0 ncn दोनों की वैल्यू 1. सो ये हो जाएगा 1, ये भी 1. सो आंसर इज 5 क्यूब, 5 upon 100 whole bracket cube 125 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or you can leave like this also. Now come to second part. In second part only 1 should work. So x equals to 1. यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3c1 95 by 100 raised to the power 1, 5 by 100 raised to the power 3 minus 1, that is 2. Now nc1 ncn minus 1 दोनों की वैल्यू n होती है. तो ये हो जाएगा 3 95 upon 100 25 upon. Now you can solve this, or you can write answer in this form also. Third is x equals to 2. 2 के केस में क्या हो जाएगा, 3c2 95 by 100 स्क्वायर 5 by 100 मीन सक्सेस 2 बार चाहिए तो फेलियर 1 बार. सो 3c2 ये क्या हो जाएगा 3 इंटू वॉट वी कैन राइट 3, सेम यहाँ पर 3 इंटू 2, 2 इंटू 1. सो दिस इज ऑल्सो 3. 95 का स्क्वायर you can find out, otherwise write in this form. Now the last part, that is all should work. 3c3 success 3 times, failure 0 times. 3c3 की वैल्यू होती है 1. So answer is 95 upon 100 whole bracket cube. So students, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th. Find the probability of throwing at most 2 6s in 6 throws of a single die. What is the trial? सिंगल डाई को थ्रो किया, कितनी बार थ्रो किया, 6 टाइम थ्रो किया, और हमें क्या चाहिए उसमें 6 चाहिए. ओके, सो कैपिटल X क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई. एक सिंगल डाई को थ्रो किया लेकिन 6 टाइम्स, और कैपिटल X क्या डिनोट करता है कि 6 कितनी टाइम्स आता है. P क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन अ सिंगल थ्रो. जब हम एक बार थ्रो करेंगे तो 6 आने के चांसेस कितने हैं. नाउ X फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन N एंड P. व्हाट इज N हेयर 6, क्योंकि डाई को हमने 6 बार थ्रो किया है, 6 आने के चांसेस, सिंगल डाई है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स होते हैं 6. इसमें 6 आने के चांसेस 1 टाइम. सो 1/6, तो 6 नहीं आने के मतलब फेलियर क्या हो जाएगा 5/6. ओके, नाउ व्हाट डू वी वांट, फर्स्ट राइट डाउन. 4th स्टेप में तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है अब तक याद हो गया होगा, p to the power x q to the power n minus x, where x can take value 0 1 2 3 up to 6. Okay, so put here the values. n के प्लेस पर 6 पुट कर दो, p 1/6, q कितना हो जाएगा 5/6. ओके, अब हम देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें फाइंड आउट करना है एट मोस्ट 2 6s. एट मोस्ट 2 6s मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 6s आने चाहिए, उससे ज्यादा 6 नहीं आना चाहिए. मतलब या तो 6 एक बार भी ना आए, 6 एक बार आ सकता है, या फिर 6 2 बार.
लेकिन 6 2 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6C0 1/6 रेज टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब हमें सक्सेस एक बार भी नहीं चाहिए, तो ये फेलियर 6। यहाँ पर 6C1 1 टाइम्स सक्सेस, तो 5 टाइम्स फेलियर। यहाँ पर 2 टाइम्स सक्सेस 4 टाइम्स फेलियर। सॉल्व करते हैं। 6C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू दैट इज 5/6 रेज टू दी पावर 6। 6C1 कितना होता है, इट इज 6, ओके, इंटू 1/6 5/6 रेज टू दी पावर 5, ये कैंसिल। 6C2 ये कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 5 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर 4, यहां लिख देते हैं सेपरेट 1/36 5/6 होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 6 जार 36। सो आगे फर्दर क्या आएगा देखते हैं इधर। सो वी कैन राइट दिस एज 5/6 रेज टू दी पावर 6 5/6 रेज टू दी पावर 5, ओके। ये कितना हो जाएगा 5/5 5 को इसके साथ लिख देते हैं, 6 को भी, तो ये हो जाएगा 1/2 5/6 रेज टू दी पावर 5। ये 5 टू दी पावर 4 5 टू दी पावर 5, ये 6 और ये 6 टू दी पावर 4। सो नाउ टेक 5/6 रेज टू दी पावर 5 कॉमन, तो 6 में से 5 टाइम्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एक 5/6, ये पूरा बाहर कॉमन आ चुका है, इधर से 1/2। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ओके, तो ये हो जाएगा 5/6 रेज टू दी पावर 5 5/6 प्लस 6/6 प्लस 3/6, कितना हो जाएगा 5 and 6 11 and 3 14। सो 5/6 रेज टू दी पावर 5 14/6। सो 7/3 multiply by 5/6 whole bracket raised to the power 5. This is the probability of getting at most 2 6s. So students 11 question देखते हैं। It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. What is the probability that in a certain sample of 12 such articles 9 are defective? तो बार बार कर रहे हैं हम बात defective की, means defective आना यहाँ पर क्या हो गया success। तो let x denotes the number of articles defective from a sample of 12 articles, okay। Now what is small p? Small p is the probability that an article is defective। Students ध्यान रखो, ये सभी पॉइंट्स देखने हैं। फर्स्ट में x लिखना है, सेकंड में p को डिफाइन करना है, थर्ड में लिखना है हमें n और p की वैल्यू। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं 12। डिफेक्टिव मिलने को हमने सक्सेस माना है, तो डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं 10%, मतलब 1/10। सो p अगर 1/10 है तो q कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/10, that is 9/10। Now formula लिखना it's compulsory to write down the formula NCX p to the power x q to the power n minus x, where x can take value 0 1 2 3 up to n। Now put here the value of n, p and q। n के प्लेस पर 12 पुट कर देंगे, p के प्लेस पे 1/10, q के प्लेस पे 9/10। Now what is our question? That we want
sample of 12 such articles, 9 are defective. So x equals to 9. So 12C9 means we want 9 articles defective, means 9 success, or 9 by 10 raised to the power 3 failure. Okay, 12C9 we can also write as 12C3. So ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 12C3 9 raised to the power 3 and 10 raised to the power कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 10 to the power 9 यहाँ पर है, 10 to the power 3 यहाँ पर है. स्टूडेंट्स आते हैं 12 जो बाकी सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है. 1 to 11 ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलर टाइप. ये 12th वन डिफरेंट है जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन निकालना है, दैट इज एनपी, वेरिएंस निकालना है, दैट इज एनपीक्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रूट ऑफ एनपीक्यू. ये फॉर्मूले यूज करेंगे. तो आते हैं फर्स्ट वन में. एन इज गिवन, P is given, we have to find out both E of x and variance of x. So students, what is the formula of E of x? It is NP. So 10 multiplied by 0.4, that is 4. And formula of variance, it is NPQ. 10 into 0.4 into कितना Q तो है नहीं. एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या निकालना चाहिए था Q. When P is this, तो Q क्या होगा 1 minus P, that is 1 minus 0.4 0.6. So put here 0.6 तो 2.4. अब आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में, that is P is given, E of x given, we have to find out N और उसके बाद निकालना है वेरिएंस. तो सबसे पहले P दिया हुआ है 0.6, तो देयरफॉर Q निकालेंगे. Q कितना 1 माइनस P, 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4. नाउ E of x, what is the formula? It is NP. Put here the value of E of x, it is 6. N निकालना है, P is 0.6. तो n कितना हो जाएगा 6 अपॉन 0.6 विच इज इक्वल्स टू 10. सो n की वैल्यू कितनी आ गई 10. नाउ वेरिएंस ऑफ x स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला इज NPQ. सो 10 0.6 0.4, आंसर इज 2.4. स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज N इज गिवन, E ऑफ x इज गिवन, P और हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टार्ट करेंगे E ऑफ x के फॉर्मूले से, दैट इज NP. पुट हियर द वैल्यूज, यहाँ पर 10, N के प्लेस पर 25 एंड P निकालेंगे 10 अपॉन 25 दैट इज 2/5. सो P इज 2/5, सो Q क्या हो जाएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 2/5 that is 3/5. Now स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम वेरिएंस निकालते हैं NPQ. N कितना NP तो ऑलरेडी पता है हमें 10 है इसकी वैल्यू, एंड Q कितना है 3/5. सो ये हो जाएगा 6. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज रूट NPQ, that is root 6. Now students, you can find out the value of root 6 by using log table or by using derivative also. So इसके आगे का स्टेप तुम्हें करना है, use here log table. Come to fourth one, in which E of x is given. So put here 8, N is 10 and find here P. So P की वैल्यू हो जाएगी 8/10, that is 4/5. Now if P is 4/5, so Q कितना हो जाएगा 1/5. Now we have to find out variance of x that is NPQ. Put here the values NP कितना है, it is 8, और अलग अलग भी रख सकते हैं. N के प्लेस पर 10, 4/5 and 1/5. तो कितना हो जाएगा ये 8/5. You can write here
1.6. So students, finally we have completed exercise 8.1. Thank you for watching my video till end. Keep watching and keep learning.